Let's go live. Um, okay. We'll wait for some time for our guest and then we'll start it. Okay. We are waiting for our guest. Okay, so basically, just to give you an introduction about what we are going to do about the series of the programs that I thought we should be doing it, and just to tell you a little bit about this initiative. It's basically it's the name of the page is the catalyst of the change. As you can see that it's what is the catalyst of change? It is, or you can say that the change champion. Basically, when you talk about it in general terms, it is a person or a thing that causes a change or the events or to happen as a catalyst. Or you can say that someone who helps to guide, navigate, or and accelerate the people side of the change with the key stakeholders. So I thought of bringing together the people who can talk about the hope and the positive impact. Because you can see there's a lot of negativity around us, and we always talk about the hopelessness, which I believe that is faithlessness, and we desperately need to talk to the people who are not only a catalyst of change, but they also bring hope in our life, who have achieved something in their life and who have such an positive impact around themselves. So today's guest is when I thought about it, is Sabine Inam. She is a producer, director, and a documentary maker. She got her scholarship from British Council, a Chevening scholarship, in 2008. And she did her master's in mass communication from Pakistan, and also another master's from the UK, which we would like to know about, that is in medical anthropology. She is an ex-infotainment producer at Geo, director communication currently at the Alag Expressions, and a media instructor in the various prestigious institutes for undergrad, graduate, and MPhil, and whatnot. Mashallah, she is doing a lot. So we would like to know about her, or without delaying it further, let's talk to her and try to find out about her journey of twists and turns. तो हाँ जी, कैसी हैं सभी? वालेकुम बिल्कुल ठीक. आज जरा दुनिया उलट हो गई, कभी हम उस तरफ कभी आप इस तरफ, तो हमने कहा कि कोई टेंशन नहीं है, उस तरह भी होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं. माशाल्लाह इतना कुछ कर रही हो, इतना सारा कुछ है कि अगर एक मैं लिस्ट बनाना शुरू करूं तो इतनी डायमेंशंस है, इतना कुछ है कि उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमने बात करनी है टाइम थोड़ा कम पड़ जाएगा, जिसको हम थोड़ा सा अभी एक सिर्फ हम आपके बारे में जानेंगे कि क्या है. अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि अभी आप करंटली क्या कर रहे हो, कि उसके ऊपर थोड़ा सा अपना, ताकि लोगों को एक थोड़ा सा पता लगे कि मेरा, जैसा आपने बताया कि अलग एक्सप्रेशंस मेरी कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है. ये 2008 से मैं और मेरे हस्बैंड इसको चला रहे हैं. इसमें हम डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स के लिए मीडिया के वीडियो प्रोडक्शंस
की प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं और फिर उस कंसल्टेशन भी देते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्री भी है, टीवीसीज भी हैं, पूरी पूरी 360 कैंपेन्स भी हैं, तमाम चीजें हैं। इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आईसीएस डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हूँ विजिटिंग फैकल्टी। 2013 में मैंने जियो छोड़ा था, इसलिए दैट वाज द ओवरलैपिंग टाइम जब मैं अपनी कंपनी भी रन कर रही थी हस्बैंड के साथ, और वो भी था साथ, जियो भी चल रहा था। इसके अलावा जो मेरी अभी करंटली मैं व्लॉग कर रही हूँ, सोशल इश्यूज भी हैं उसमें। उसमें सब में सोशल इश्यूज सिर्फ नहीं है, उसमें एनीथिंग दैट रिलेट्स टू अ नॉर्मल मैन। वो एजुकेशन भी है, वो हेल्थ भी है, वो साइकोलॉजिकल हीलिंग भी है, वो सब चीजें हैं, फैमिली भी है, ट्रॉमा भी, हर किस्म का आपको टॉपिक मिलेगा, मगर वो एक आम इंसान से रिलेटेड होगा। इसके अलावा मैं मेरा वेंचर है मीडिया ट्रेनिंग्स का, मीडिया एनेबलर के नाम से, मीडिया एनेबलर्स के नाम से। वो मैंने वो पहले भी था, लेकिन वो बीच में सॉर्ट ऑफ रुक सा गया था, लेकिन अब मैं उसको रीलॉन्च कर रही हूँ। और बेसिकली वीडियो प्रोडक्शन की ट्रेनिंग्स हैं, नोइंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ डिजिटल मीडिया। तो उसको सामने रखते हुए जो हमारे कन्वेंशनल मीडिया से शिफ्ट आया है टुवर्ड्स द डिजिटल मीडिया, उसके लिए वीडियो प्रोडक्शंस इन ऑल द पॉसिबल डोमेन्स वो मैं करवा रही हूँ। तो ये है। अच्छा, माशाल्लाह, इतना कुछ कर रही हो कि उसके ऊपर है कि माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये तो आप सारा कुछ कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि हु इज सबीन इनाम एज अ पर्सन? कौन है, क्या है उसके, क्या क्या हम उसको, जिस तरह ये सारी चीजों से हटके वी वांट टू नो यू एज अ पर्सन। असल में सबीन को बड़ा सा मैंने भी खोजा है। उसको ढूंढने के चक्कर में ना मैं बहुत दफा खुद गुम गई हूँ। हाँ। और और वो जो है ना, मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल काम है इंसान की जिंदगी में। हाँ। मगर इस बात को सोच लेना कि उसने खुद को ढूंढना है ना, ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज इतना रश लगा हुआ है ना हर चीज का। हर बंदा अपनी डुगडुगी बजा रहा है। तो आप ना कंफ्यूज हो जाते हो, आप कहते हो यार मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं क्या करूं, मैं खुद कौन हूं, मैं करना क्या है। वो तो उस रश में मैं भी थी, उस डुगडुगी के शोर में मैं भी थी। मुझे ये समझ में आता है, और ये बहुत रिसेंटली मैंने आइडेंटिफाई किया। हालांकि ये चीज मुझे पता थी, पर शायद मैं अब आइडेंटिफाई कर पाई हूँ उसको मैं। और वो ये शायद है कि सबीन एक वो इंडिविजुअल है जो जो जिसका मुझे लगता है जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, और वो ये है टू बी द एजेंट ऑफ चेंज अपने हिस्से में। बड़ी बात नहीं कि ये कर दूं और वो कर दूं, नहीं, मुझे बस अपना हिस्सा डालना है। चाहे वो एजुकेशन में, मतलब मैं मीडिया ट्रेनिंग्स कराऊं, चाहे मैं प्रोडक्ट्स क्लाइंट्स के लिए क्रिएट करूं। आई वॉन्ट कि मेरी जो ट्रेड्स है ना, जो भी मेरी ट्रेड्स है, चाहे वो ऑनेस्ट इंक्लूजन इन द प्रोजेक्ट है, चाहे वो किसी को सिखाना है, चाहे वो किसी का दर्द सुनना है, चाहे वो किसी के लिए कोई ऐसी, चाहे वो किसी की आवाज किसी तक पहुंचाना है, वो चाहे इतनी सी है ना, इतना जर्रा ही है, चाहे मुझे बस वो करना है। एंड आई एम समबडी, आई थिंक, हु इज पीपल्स पर्सन। I am some, or in whatever I do, this was something which was quite difficult for me to identify this time. Who am I? So I think that's one thing, that I am probably people's person. Whatever I do, it's usually not for me. And yes, it is for me because उसका मुझे like जो उसका रिजल्ट है ना, वो मुझे बस सुकून देता है। तो यही है फिलहाल तक मुझे समझ में आया अपने बारे में। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, आपके थोड़ा सा पास में चले जाएं, क्योंकि अब मेरा एक, क्योंकि मैं आपको पता है कि काउंसलर भी हूं, तो मुझे थोड़ा सा ना एक वो माजी में जाके एक वो एक चीज होती है। अगर हम आपके स्कूल लाइफ या उसको हम करें कि जब शुरू में ये क्या सोचती थी कि क्या बनना है, मुझे क्या करना है जिंदगी में? मुझे काफी कुछ बनना था बारी बारी। एक बेसिकली मुझे लगता है, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं अपने बारे में, लेकिन मुझे इतना याद है कि आई वाज अ वेरी, मेरे दो चेहरे थे। एक था बहुत शरारती सा खिलंडरा सा बच्चा, और एक था बहुत खामोश, और जो अपने कहीं हवा में रहता है, अपनी ही सोच में रहता है। पहले आई थिंक मुझे सबसे पहले फौजी बनना था, क्योंकि मैं भाइयों में पली बड़ी थी, तो मुझे लगता था कि यार मैं बहुत फाइटर हो सकती हूँ। दो भाई हैं आपके? दो भाई हैं माशाल्लाह, दो भाई हैं। और बहन कोई नहीं है। और बहन पूरे खानदान में उस तरह से, मतलब जैसे फीमेल कजन थी, बहुत कम थी। तो वो एक आती मैं काउंट करूंगी जो थी, वो भी बिल्कुल मेरी जैसी नहीं थी। तो फिर मुझे लगता था कि मैं बस भाइयों के साथ ही लगी रहूं जो भी। तो पहले फौजी बनना था, फिर डॉक्टर बनना था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। क्योंकि अम्मी अब्बू मेरे इंस्पिरेशन थे। अम्मी मेरी डॉक्टर थी। तो चूंकि अम्मी को अपना हॉस्पिटल था, तो दैट वाज वन
and the way they receive all the prayers and the way they invest their energies in people's lives. So unconsciously, this was something that I really liked. I was 18 when I had to like assist my parents in the administration of the hospital. So that is probably one of the best experiences. क्योंकि मुझे लगता था कि मैं रातों को 3-3 बजे भी ना पेशेंट्स के कमरे के बाहर बैठी रहती थी कि रात की जरूरत ना पड़ जाए, तो मुझे डांटे पड़ती थी कि तुम वापस आती क्यों नहीं हो, क्योंकि घर ऊपर था, हॉस्पिटल नीचे था। इट वाज एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसके ना ऊपर के फ्लोर पे हम रहते थे, तो मुझे इसमें डांटे पड़ती थी और मैं कहती थी कि यार ये कैसे लोग हैं और फलाना ढिमलाना, बिकॉज मैं तो किसी के लिए बैठी हूँ। और जब वो लोग मेरे सर पे हाथ रखते थे तो मुझे मजा आता था और दुआ देते थे। तो ये बीच में हाँ, जब आई रियलाइज द मेडिकल फील्ड, तो उस वक्त मुझे लगता था कि मैंने जेनेटिसिस्ट बनना है। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। जेनेटिसिस्ट मैंने इसलिए बनना था बिकॉज मेरी फैमिली में एक जेनेटिक डिजीज थी और मुझे लगता था कि मैंने उसके बारे में अपने तौर पे जो है ना, I think I was a kind of child who was very much willing in like self initiative. तो मैं अपने तौर पे ना चीजें ढूंढती खोजती रहती थी। तब इंटरनेट का ये ड्रॉप हो गया है, दोबारा से ट्राई टू कनेक्ट सबीन के साथ। विल ट्राई टू कनेक्ट अगेन। चलें, जितनी देर में अब सबीन दोबारा कनेक्ट होती हैं। शी वाज टॉकिंग अबाउट कि चेंज का, जिस तरह से वो बात कर रही हैं और वो अपनी लाइफ का बता रही हैं कि किस तरीके से वो उसमें अपने आप को ढूंढने की, खोजने की कोशिश करती रही, उसके ऊपर है। तो इसी तरह ही है इंसान, इसी तरह ही है कि हम जिस तरह अपने आप को ढूंढते रहते हैं सारी जिंदगी, हमें पता नहीं चलता कि एटलीस्ट कि हमने करना क्या है। डिफरेंट पाथ्स हम लेके देखते हैं, डिफरेंट चीजें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने साथ, है हमें खुद नहीं पता होता। और बचपन के अंदर जो चीजें हम सोच रहे होते हैं, जो हम ख्वाब देखते हैं या कुछ है, वो चीजें ये मैं ऐड कर लूं, वो चीजें डिफरेंट होती हैं। और उन चीजों जब हम बाद में, जब हम बड़े होते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि वो चीजें कुछ और थी और अब ये है कि अब जो हमने ख्वाब देखे थे। कमिंग बैक टू यू सबीन। अच्छा सबीन, एक और चीज है कि जिस तरह आप ये कहते हो कि आपका भी अब खोजने का और वो टाइम था, सारा कुछ आप एक्सप्लोर कर रहे थे, उसके ऊपर है। तो उसके बाद जिस वक्त आप 18 इयर्स के बाद या क्या है, आपने उसके ऊपर जब मेरी और आपकी मुलाकात हुई तो वो हमारी एक IT इंस्टीट्यूट के अंदर हमारी हुई। मैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में थी और आप वहाँ पे स्टूडेंट थे। तो व्हाई डू यू हैव डिसाइडेड टू गो इनटू द फील्ड ऑफ IT, कि मैंने IT के अंदर जाना है? वो क्यों था? एक्चुअली वही बात है कि चीजें ना कड़ी से कड़ी अल्लाह ने जोड़ी होती है और अल्लाह ने आपके लिए रास्ता कुछ ऐसा बनाया था, आपको नहीं पता था आप सड़क पे क्यों चल रहे हैं और गलियां क्यों बदल रहे हैं। तो मैंने बहुत सी गलियां बदली हैं। जब मैं आपसे मिली हूँ, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांजिशंस इन माय एकेडमिक करियर। और एकेडमिक साइड, उसकी रीजन ये थी कि मैंने तो कभी IT में जाना ही नहीं था। मैंने तो कुछ करना था तो मेडिकल की फील्ड में करना था। तो IT में आने का रीजन सबसे बड़ा ये था बिकॉज माय मदर गॉट रियली इल। तो मैं मेडिकल में एडमिशन मेरा हो रहा था, लेकिन चूंकि वो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि जिसमें वो बेड रिडन होने का उनके चांसेस थे और उनको बहुत केयर की जरूरत थी। तो फिर मुझे सजेस्ट यही किया गया फैमिली की तरफ से कि भाई देखो, पढ़ाई बहुत मुश्किल है मेडिकल की, फिर बाद में हाउस जॉब, ये वो, तो दिन रात का पता नहीं होना, और वैसे भी इट्स गोइंग टू बी लाइक टफ कि घर भी और वो भी। तो तुम IT का बहुत बूम था उसमें, वो बूम 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 ले चलता ना हमें हर तरफ, एप्टीट्यूड हो या ना हो। तो भाई का आपको पता है मेरे माशाल्लाह, वो तो उसकी तो खून में IT था, वो तो इतना माशाल्लाह गुड था, उसके लिए तो IT वाज फॉर हिम नॉट फॉर मी। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई जॉइंड सम शॉर्ट कोर्सेज इन इंफॉर्मेटिक्स। और तब, और वो भी इसलिए क्योंकि आई हैड टू चेंज माय लाइन। तो फिर मैंने कहा अच्छा, अगर ये, फिर काफी रोते धोते मैंने वो किया, लेकिन खैर रोना धोना मेरा कभी भी रहा नहीं उसका जिंदगी में। जब मैंने ले ली एक चीज तो फिर ले ली। तो फिर हाँ, फिर मैंने शॉर्ट कोर्सेज से स्टार्ट किया, फिर मैंने अपने GCS और AGCS में एडमिशन लिया। तो दैट वाज द टाइम व्हेन वी मेट। और आपको याद होगा कि IT वाज नॉट माय फील्ड, बावजूद इसके आई वाज टीचिंग ग्राफिक्स एंड एनिमेशन एंड ऑफिस टू लाइक शॉर्ट, जो प्रोफेशनल्स आते थे शॉर्ट कोर्सेज के लिए। बिल्कुल। तो, हाँ। अब मुझे
याद है, मैं वही जो बात एक, जब हम पहले भी एक डिस्कशन कर रहे थे और उसके ऊपर यही था कि या कुछ चीजें याद रह जाती हैं आपको ना, कि क्या चीजें जब आपकी ट्रांजिशन का चल रहा था, और जाहिर है कि हाँ, हम भी उसे ऑब्जर्व करते थे स्टूडेंट्स को, सारों को तो नहीं कर सकते, लेकिन जिनके साथ आप क्लोज होते हो जरा थोड़ा वो हो जाता है। तो वो एक कोर्स के ऊपर आप आके फंस जाती थी कि मैंने नहीं करना, ये चीजें नहीं है हाँ, ऐसा, बाकी सब हाँ, सब कर लिया, सब मुश्किल गुजार ली है क्या है, लेकिन एक प्रोग्रामिंग का था, मुझे याद है, जावा, हाँ, जावा जावा प्रोग्रामिंग का। था और C++ था। प्रोबेबली दैट वाज द टाइम, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप प्लान करते हो और अल्लाह कुछ और प्लान कर रहा होता है। तो ऐसे ही वो है। जिस वक्त आपको, हाँ, वो आपका, अगर वो चीज भी हो जाती, आप वो कर लेती, तो उस वक्त भी शायद एक मतलब डिग्री तो ले लेती, लेकिन उस टॉप का लगना जरूरी था, ताकि आपको आपका रास्ता चेंज हो, आप एक टर्न लो, और उसमें ऐसे अपने ही है। आप को फिर एक्सप्लोर करो कि क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको यूटिलाइज नहीं करते। सो प्रॉब्ली बिल्कुल। दैट वाज द टाइम जब आपको उसको ऊपर लगा के, या उससे पहले ही आपको लगता था कि नहीं, मैंने नहीं ये करना। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि फेलियर मेरी जिंदगी का ना मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है सारी जिंदगी। हाँ। तो मैंने रेड मार्क रेड रिजल्ट हमेशा सारी जिंदगी देखा है। हम्म। और मैंने तो एक जो होते हैं ना कि ये जो मेरी सिर्फ रास्ते बदल रहे थे, कि यूं नहीं थे कि सिर्फ शौकिया रास्ते बदल रहे थे। आई हैव फेस्ड फेलियर सो मेनी टाइम्स, और इतनी दफा मैंने गिर कर दोबारा उन चीजों को अटेम्प्ट किया है कि मेरा ना खुद के साथ एक मजाक बन गया था कि कोई नहीं, फिर कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो आईटी था, और जब मैंने इसमें चूंकि मेडिकल से आईटी और फिर आईटी से सीधा मैथ कॉम नहीं था, हाँ। आईटी के बाद आई वाज पुश्ड इनटू बिजनेस स्टडीज। ओके जी, अच्छा तुम बैंकिंग में कुछ कर लो। अच्छा, अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं फुल जहन थी। अच्छा। आई वाज इंटेलिजेंट, बट प्रॉब्लम ये थी कि सारी बचपन आई वाज बुलीड बाय माय, मैं कहना नहीं चाहिए, बट आई वाज बुलीड इन द स्कूल। एंड आई वाज मतलब होता है ना, बैक बेंचर्स होते हैं बट वेरी सेंसिटिव इंटेलिजेंट बच्चे, इंटेलिजेंट तो खैर नहीं अपने आप को कहूंगी, लेकिन दे वर वेरी अबव एवरेज, वेरी सेंसिटिव एंड कॉम्प्रिहेंस, उनकी कॉम्प्रिहेंड करने की ताकत अच्छी होती है। बट प्रॉब्लम ये होती है, इन द एनवायरमेंट दे बुलीड बिकॉज दे कीप क्वाइट, और वो जो है उनको सिर्फ एक मजाक का आंसर बनाए रखते हैं, फिर वो उस तरह से। और फिर कुछ ऐसे मामला रहे जिसकी वजह से ना मैं अपने स्कूल में जब फेल होती रही हूँ ना, तो नाइन्थ में जब मैं फेल हुई हूँ ना, फाइनल्स में निकल जाया करती थी, जब मैं नाइन्थ में फेल हुई हूँ ना, दैट वाज अ मेजर ट्रांजिशन इन माय एप्टीट्यूड टुवर्ड्स टेकिंग अप अ कोर्स। फिर वो कुछ करती थी ना, तो ये इस नजर से नहीं करती थी कि अच्छा फेल हो गए तो कोई बात नहीं, नहीं, फिर मुझको एक्सेल करना था। उसके बाद जब आईटी से आई वाज शिफ्टेड टू इसमें बिजनेस स्टडी, बैंकिंग की तरफ। बैंकिंग से देन बहुत मुश्किल से जर्नलिज्म, और उसमें भी मुझे जबरदस्ती पॉलिटिकल साइंस में ठोका जा रहा था मेरे एकेडमी के टीचर्स जो थे। मैंने कहा मेरा नहीं है एप्टीट्यूड, मैं फिर फेल हो गई। मुझे फिर जबरदस्ती, मतलब ये एक अजीबो गरीब सा फेलियर का सिलसिला था। इवेंचुअली आई लैंडेड अप इन किनेट, और वो भी जिस तरह से हुई वो भी एक पूरी कहानी है, बट एनीवेज, कि किनेट में जब मैं गई हूँ मैथ फॉर्म में, तो उसका करिकुलम में मुझे जो अच्छी चीज लगी थी वो लगी ये थी कि यार दिस इज क्रिएटिव, दिस इज समथिंग जो जिसमें मैं अपनी बात इमेजरी के थ्रू और चीजों के थ्रू कह सकती हूँ। दिस वाज द टाइम जब मीडिया वाज लेबल्ड एज कि यार तुम लोगों ने क्या, लड़कियां अब हमारी मीडिया में जाएंगी, वो वाला दौर था लाइक 2003। वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट, बट मुझे उससे पहले मैंने फोटोग्राफी का शॉर्ट कोर्स किया था, तो आई हैड दैट सेंस इज वेल। और दूसरा क्या था कि मुझे लगता था कि यार मैं जो कहना चाहती हूँ ना, मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं एम ए कम्युनिकेशन पर्सन, या आई कैन एम्पथाइज विद पीपल, और आई कैन कनेक्ट विद पीपल, और आई कैन टेल स्टोरीज एंड आई कैन लिसन टू देम। वो सब नहीं था। इस तरह मैं बहुत अजीबोगरीब हरकतें करती थी। तो मैंने कहा मैं मैथ कॉम, ये मुझे समझ में आता है, उसमें डॉक्यूमेंट्री पे वो सब चीजें नहीं थी हालांकि मेरे लिए। उसमें आई वाज लाइक गुड। उसके फौरन बाद जब आई स्टार्टेड जियो, फिर मुझे पता चल गया कि अच्छा ये मेरा ट्रैक है। हालांकि आपको पता है जियो में जाने से पहले भी माय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शी वाज इंसिस्टेंट कि तुम एडवर्टाइजिंग की बंदी हो, तुम्हें एडवर्टाइजिंग में जाना चाहिए, क्योंकि दो मेन शाखें थी, एडवर्टाइजिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मैं अक्कड़ बक्कड़ वाला ही फील हुआ कि इसमें या इसमें इसमें या इसमें क्योंकि इंटरेक्शन नहीं मिल रही थी, तो किस्मत हुई कि मैं जियो में हो गई। और फिर मीडिया की फील्ड या विजुअल मीडिया जो वीडियो प्रोडक्शन के फॉर्म में था, उसमें सारा शुरू हुआ चलना, और फिर वहां से आगे। अच्छा, अभी आपने एक जो बात की है ना, उससे मैं डिसएग्री करती हूँ। जिस वक्त आप कह रहे हो कौन ना सी कि वाली? मैं मतलब इंटेलिजेंट नहीं थी, मैं, ये क्या है ना, आई डोंट बिलीव इन दैट। मतलब
हाँ, आई बिलीव, देखो, यू आर नॉट एट द राइट प्लेस। हाँ आप एग्जैक्टली, ये इंटेलिजेंट का बंदा, मतलब है जो लोगों के डेफिनेशन में इंटेलिजेंट होता है ना बच्चा, अच्छे स्टार वाला, बड़ा ब्राइट बच्चा, लोगों की वैसा नहीं है। डेफिनेशन, जाहिर है कि अल्लाह का शुक्र है कि जो कुछ कर रही हूँ, या तो इतना तो जहन होगा कि इंसान इन चैलेंजेस को, लेकिन वही मैंने कहा ना, जो डेफिनेशन लोगों की होती है ना इंटेलिजेंट की, गुड मार्क्स, गुड ग्रेड्स, ऑलवेज ऑन द टॉप, मेडल्स, मैंने जिंदगी में नहीं कभी देखे। अच्छे जीपीए अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखे, वरना शायद तो मेरी रेस में मैं पीछे की रह जाती। हाँ, तो बात वही है ना कि जब जो चीज हम अक्सर मैं और आप बात करते हैं, ये क्या कि ग्रेड्स ठीक है, इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर एक हद हाँ तक, जी, लेकिन असल जो बिल्कुल चीज है वो स्किल्स है, जो स्किल्स के थ्रू ऐसी आप है। जिंदगी के अंदर सरवाइव करने के लिए भी है आपके, और आगे बढ़ने के लिए भी वही चीजें हैं। तो मुझे ये बताओ कि जो आपने जब आईटी की फील्ड में आप गए थे, या इंफॉर्मेटिक्स के अंदर, या जो आपने डिफरेंट कोर्सेज किए, क्या जो हाँ उसमें हाँ। आपने जो स्किल्स लर्न की, तो उसको आप किस तरह से करते हो कि आप हाउ डू यू फील ट्रांसलेट इट इनटू द आपका जो अभी करंट आपका जो फील्ड करंट है, वो किस बिल्कुल, तरीके से आप एक एक उसको चीज, कैसे अप्रोच करो करना है? एक एक चीज। यकीन कीजिए मैंने इतने शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, फोटोग्राफी की है, बैंकिंग की है, टीवी प्रेजेंटिंग की है, क्या कहते हैं और पता नहीं क्या कुछ, और वो आईटी के इतने सारे कोर्सेज किए हैं। मैं जब, अब आप देखें कि चीजें ना इंडस्ट्रीज ब्लेंड हो रही हैं। जब हम कर रहे थे तब आईटी वाज लोग कहते थे सॉफ्टवेयर हाउस में नौकरी ढूंढनी है तो आईटी का हाँ, काम होगा। देन एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैड एन आईटी यूनिट, इट वाज मैंडेटरी। तो आईटी हाँ, वाज ब्लेंडेड इनटू, और हर फील्ड में आईटी का आंसर पाया जाता था, ठीक है, चाहे नेटवर्किंग की में हो, चाहे कहीं भी हो। लोगों ने अपने कामों में भी डेटाबेसेस बना के अपने काम चलाए हुए थे। फिर वो आंसर आया जब कम्युनिकेशन का, तो फिर उसमें जब चीजें आई तो उसमें भी था कि जिसने मीडिया में जाना है उसका तो सारा का सारा काम ही यानी मीडिया इंडस्ट्री का बंदा होगा, ऐसी बात गलत है। जब हम्म, ब्लेंड हुई तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मर्ज हुए आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और आपके जो कम्युनिकेशन या प्रोडक्शन के लोग हैं उनकी डिमांड बननी शुरू हुई। और अब का दौर देखें कि डिजिटल मीडिया जब आया है, तो डिजिटल मीडिया के बगैर कोई दुनिया का काम नहीं चल सकता आपका। तो मेरी बिल्कुल, फोटोग्राफी हो जाए, टीवी प्रेजेंटिंग हो जाए, जो मर्जी चीज हो जाए, आईटी की ग्राफिक्स हो जाए, मैं आज एडिटिंग खुद करती हूँ। मेरी वो हम्म, तमाम बेसिस पता नहीं कहाँ कहाँ से बनी हुई है। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऑर्गेनाइज जब अपना डेटा करती हूँ तो मैं शुक्र करती हूँ 1998 में जब मैंने वो ऑफिस का कोर्स किया था, एक्सेल, हाँ, वर्ड, जिससे मैंने अपना आईटी का आगाज किया, वो आज भी मेरे मेरे पूरे मेरे मतलब मैं इतना ऑर्गेनाइज मेरा डेटा होता है सारा, वो सारा वो नॉलेज है मेरी। तो मेरा कुछ भी जाया नहीं गया, कुछ भी जाया एग्जैक्टली। नहीं गया। और ये वो चीजें जिस वक्त करते हैं ना, जो लोग पूछते हैं या बच्चे पूछते हैं कि जी कि हमें इसका फायदा क्या है, या उसके हाँ ऊपर वो कर नहीं पाते ना। तो ये वो चीजें कि ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ भी सीखते हो, इन माय ओपिनियन वो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन होता है, अगर आप उसको एक कॉन्शियसली अगर आप उसको ऊपर देखो ना, कहीं ना कहीं उसका आपको फायदा और होता है। अगर डायरेक्टली कनेक्शन ना भी हो ना, तो जो एक्सपोजर है ना, वो आज की एग्जैक्टली, दुनिया में इतना जरूरी है कि आपको, अगर आप एग्जैक्टली, यहाँ बैठिए ना, आपको पता नहीं है ना कि यहाँ क्या हो रहा है, तो आप बेसिकली अलूफ रह के नई चीजें कर सकते हैं। यू नीड टू नो, अदरवाइज आप स्टैंड अलोन होकर काम नहीं कर सकते इंटीग्रेशन के बगैर। तो अगर आपको दूसरी इंडस्ट्री नॉलेज है तो आप अपने ही काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्यों, अब मैं जब वीडियो बिल्कुल, प्रोडक्शन के कोर्सेज लॉन्च कर रही हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं अच्छा हमने वीडियो प्रोडक्शन करके क्या करना। मैं कहा यार, अगर तुम्हारा स्मॉल बिजनेस है ना, यू नो वीडियो प्रोडक्शन, यू कैन प्रमोट योर बिजनेस थ्रू योर वीडियोस। हाँ, अगर तुम इफ यू हैव अ स्किल, you know video production, you can project yourself in the international market, on the social media, you can gain fame and money both. If you know a बिल्कुल, skill, you can go on online, जैसा Fiverr है, Upwork है, you can, आप स्किल लर्न कर लो वीडियो प्रोडक्शन की, आप फ्री टाइम में अपनी रेगुलर नौकरी के साथ यू कैन अर्न मनी बाय गेटिंग अ क्लाइंट ऑनलाइन एंड डू देयर वर्क। एंड अब तो इतनी आसान हो गई ये चीजें। सो ऐसा है ही नहीं कि आप इंडस्ट्री के जब तक नहीं है तब तक आप वो काम नहीं कर सकते। अब देखें ना, आईटी और ये कितना ब्लेंड हो गया, एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डिजाइनिंग है, ये सब कैसे डिजिटल मीडिया में मर्ज हो गया है। अब आप ये नहीं बिल्कुल, कह सकते कि चीजें स्टैंड अलोन है। सो आप, बिल्कुल, ये चीज हमारी लोगों को समझने की बहुत जरूरत है, स्पेशली हमारे यूथ को। उनको वो डरते हैं, घबराते हैं कि यार फेल हो गए तो फायदा क्या होगा। अगर हमें ना समझ में, यार नहीं समझ आएगा अगली चीज पे मूव कर जाना ना। कौन सी और चीजें देखो, आजकल इंटीग्रेटेड नहीं है, और दूसरी ये देखो, फेलियर फेलियर की जो आप बात कर रही हो ना कि
आप जब तक जिंदगी में आप फेल नहीं होते ना, फेल कौन होता है? जो ट्राई करता है। तो जब तक हाँ आप फेल नहीं होते ना, आप उससे लर्न नहीं करते और आप इम्प्रूव नहीं एग्री। करते। जिंदगी में अगर आपने, मेरा तो ख्याल है कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना, बच्चों को हम शुरू से एक जो पेरेंट्स भी और स्कूल्स के अंदर भी एक जो चीज है हमारे के हम उसमें करते हैं कि बच्चों को के सक्सेस की तरफ और एक बिल्कुल एक आइडियलिज्म की तरफ हम उनको बच्चों को करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जबकि हम ये जिंदगी में नहीं सिखाते कि आपने अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपने उस फेलियर को हैंडल कैसे करना है। अच्छा मुझे ये यार मुझे बताओ लगता कि है कि फेलियर इतना अहम है जिंदगी में, इतना अहम है कि मैं यकीन करें, आप समझेंगे मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक तूने मुझे इतने मुश्किल रास्तों से गुजारा, बार बार मैं नीचे गिरी और मैं उठी। मेरे में शायद ये जो ताकत है ना, अच्छा जो इंसान हारता नहीं है ना, उसे हमेशा खोने का डर लगा रहता है। मैं ये छोड़ दूंगा तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा इसके बगैर। नहीं यार, अगर नहीं है आपकी कप ऑफ टी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चीज। आप यकीन करें, मैं आपको बड़े मजे का किस्सा सुनाऊं और इधर कोई रेलिवेंट बंदा सुन रहा हो तो उसे खुशी हो शायद। मैंने अपने बेटे पे ना कभी प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए। आपको मेरी तबीयत का पता है, लोग सुनते भी रहते हैं। और इसकी मैं आपको ट्रू एग्जांपल दूं, मैं उसे हमेशा ये कहती हूँ, बेटा तुम्हें परफॉर्म बेहतरीन करना है, मार्क्स के पीछे नहीं भागना, ठीक है? जब अच्छा परफॉर्म करोगे, सिस्टम को समझ आती हो कि तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन तुमने अपने आप को अपने नफ्स पे, अपने दिमाग पर सवार नहीं करना। अच्छा कोई प्रॉब्लम हुई इनके स्कूल में और इसका ना अभी ये मैथ का पेपर हुआ, देयर वाज अ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम थी, यानी टीचर की तरफ से कोई प्रॉब्लम थी कि पूरे के पूरे बच्चे क्लास में मैथ्स में फेल, ठीक है? ओ और ये माशाल्लाह यूजुअली हाई अचीवर्स में आता है। तो इसको जो है ये, इसको अब ये पहली दफा था कि ये फेल हुआ है किसी चीज में। द बेस्ट थिंग जो मुझे सबसे अच्छी लगी, घर आया, मुझे मुस्कुराते हुए इसने कहा माँ आपको एक खबर सुनाऊं? मैंने कहा सुनाओ। आपको पता है मैं आज जिंदगी में पहली बार फेल हो गया। मैंने कहा रियली? कहता, मैं कहा कैसे? कहता पता नहीं मम्मा, समझ नहीं आई, सारे बच्चे ही फेल थे। मैंने कहा यार बात सुनो, मसला कोई नहीं है, फेल हो गए, हो जाता है, लेकिन हम फाइंड आउट जरूर करेंगे कि ग्लिच आया किधर है। हाँ तो मेरे हाँ लिए तो सबसे खूबसूरत चीज थी ये कि हाउ ही हैंडल्ड फेलियर। यार मेरे लिए इससे ज्यादा, यानी आई एम कंसर्न कि व्हाट वाज द रीजन, बट मुझे इसने बहुत रिलीफ दिया, बिकॉज आई नो बच्चे, आई नो पीपल जो फेल होने पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं। सो जबीन दैट्स उसकी नॉट हेल्दी। वजह है ना। हाँ उसकी वजह देखो, उसकी वजह ये है कि जब पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं ना और बच्चे को प्रेशराइज नहीं कर रहे होते, तो जब बच्चा पेरेंट्स की तरफ देख रहा होता है कि अच्छा अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्या, तो वो किस तरह हैंडल कर रहे हैं आपके कहे बिल्कुल बगैर, आपके एटीट्यूड से। आप जब किसी कोई सिचुएशन होती है और द वे यू रिएक्ट, आप या आपके हस्बैंड सभी आप रिएक्ट करते हो ना, वो बच्चे बिल्कुल। उसको पता है, उसको पता है कि अच्छा ये अगर होगा तो मैंने क्या करना है। और दूसरी चीज ये है कि यू आर ओपन टू योर चाइल्ड, आप हाँ बात करते हो ना, कम्युनिकेशन है ना। हाँ, जब आप यही तो आप बात। हाँ कम्युनिकेट करते हो, बच्चे को सुनते हो, तो उसको एक हम्म, ट्रस्ट होता है, उसको पता होता है कि अच्छा चलो ठीक है भाई, हमेशा आ रहा हूँ, और अगर मैं इसके ऊपर फेल भी हो गया तो मुझे पता है कि मैंने मामा के पास जाना और मैंने बताना है कि ये हो गया, तो शी इज नॉट गोइंग टू स्लैप मी या शी इज नॉट गोइंग टू से कि ये क्या किया तुमने, ठीक है ना। ये क्या किया ये एग्जैक्टली। ये ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आपको बच्चे को देना है। और यार मुझे अगर लगता है फरा कि अगर इसके साथ, अगर इस चीज के साथ अगर बच्चा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख लेता है ना, तो उससे अच्छी और कोई चीज नहीं है। आप कितनी देर बच्चे के पीछे भागोगे? बच्चा खुद एहसास करे कि मुझे ये काम करना है और अच्छा करना है, और अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैंने अपनी हवास पे सवार नहीं करना उसे। तो जिंदगी के दोनों रुख उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ झेले ना। जो मैंने सारी बिल्कुल जिंदगी क्योंकि फेस किया, तो मुझे पता है कि जब उंगलियां उठती थी, बातें उठती थी, तो मुझे बहुत, आई मीन मैं बहुत डिप्रेस्ड फील करती थी कि यार मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे लोगों पे गुस्सा चढ़ता था। मैं अगर आज ये स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ कि शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं थी, क्योंकि मैं लोगों के मैार पे नहीं थी। आई डोंट वांट टू सेट दैट इमोशनल स्टैंडर्ड्स फॉर माय चाइल्ड एटलीस्ट, क्योंकि एग्जैक्टली। आई नो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाटएवर आई हैव डन आई एम सेटिस्फाइड, और अल्लाह का शुक्र है जो मिलता है करता है, बहुत अच्छा है, अच्छा करे हुए हो। बट मेरा मुकाबला मुझसे है, लोगों से नहीं है। मैंने अपने कल से बेहतर कुछ परफॉर्म करना है। क्योंकि मुझे इस चीज से याद आया सबीन के एक प्रोग्राम आप कर रहे थे इसके अजान के साथ, आपका जो बेटा है उसके जी साथ जी आपने एक चीज बड़ी बड़ी जी, अच्छी की। लर्न विद और अजान मैं शुरू किया था हमने। हाँ, वो आपने कुछ थोड़ा सा स्टॉप कर दी हुई है, या थोड़ी देर के लिए आपने उसको एक आई पॉज विश दिया अजान ये हुआ है। सुन रहा होता अभी। ये चीज इतनी इतनी मजे की, और पता है उसके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस जब वो बोल रहा होता था ना,
और जिस हाँ तरह वो जी बता रहा होता था, वो प्यारा जानू बच्चा जिस तरह वो कहता था, तो वो आपको खुद ब खुद आपको होता है ना कि आप मजबूर हो जाते हो करने के लिए कि यार जी जी। ये करना है ये, और ये बात जो कह रहा है ना, एक बच्चा कह रहा है, तो उसके ऊपर है ये हाँ कमेंट भी साथ। ये एक सबीना मलिक है, वेरी नाइस सेशन फॉर एंड सबीन। माहा थैंक यू मोहसिन कह सो रही है मच। जी गुड अप्रोच। हारून हबीब है, इज फुली एग्रीड विद यू। तो चलो इसका थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसके ऊपर है। अच्छा, जी बिल्कुल। दूसरा मुझे ये कि आपने अपने आप को, ये जो चैलेंजेस आए कि एक आपने शिफ्ट किया ना, एक जगह से शिफ्ट नहीं किया हाँ आपने तो वो बकायदा पूरा एक इधर से इधर आपने कहीं यू टर्न लिया, कहीं स्ट्रेट गए, कहीं आप लेफ्ट गए, राइट गए, और वो करते हुए हाँ। आपने किया। तो ये चैलेंजेस थे, ये किस तरह आपने ओवरकम किए, कि फैमिली सपोर्टिव रही आपके साथ, और वो किस तरह से था? देखिए ये सबसे मुश्किल पार्ट है और मुझे लगता है इस पे हमारी जो है ना, मेरा ख्याल है कि मेरे इस डामाडोल में ना बहुत बड़ा रीजन ये था कि देयर वाज हेल्प, देयर वाज सपोर्ट, पर खाली हेल्प और सपोर्ट कुछ नहीं करती, गाइडेंस बहुत जरूरी होती है हाँ, इन हाँ, ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द करियर। आप देखिए करियर गोल्स हवा में सेट नहीं करते, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड्स क्या है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। वो सब की कमी की वजह से ये जो रास्ते बदले मेरे। तो मैं हम्म, इसको जितना आप लोग भी कहते हैं कि कहीं ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी थी, कहीं ये वर्टिकल थी, तो मेरी दोनों थी, विच वॉज हम्म, हेल्दी एंड अनहेल्दी बोथ वे। कुछ चीजों में मुझे इसका फायदा, नुकसान खैर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी का भी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में फायदा ही दिया। जो हम्म, मैंने अब देखिए ना, जब मैंने मेडिकल से, तो उसके पीछे जो सबसे बड़े रीजन थे ना वो यही थे कि चेंजिंग ट्रेंड्स थे जो इधर पुश कर, शौक था, लेकिन चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ जो था ना, मुझे तो सपोर्ट थी, पुश भी थी। थोड़ा ये हम्म, एक्चुअली हमेशा से ये था यार, मैं कुछ करना चाहती थी, मैं स्टेगनेंट लाइफ नहीं गुजारना चाहती थी। उसके जुस्तजू में ना मैं चैलेंज, जब मुझे कोई धक्का दे भी देता था ना, मैं कहती थी ऐसी की तैसी करूंगी। मतलब वो आप करने सोच नहीं वाला कीड़ा सकती था अंदर। कि मुझे जब बीए का मैंने इम्तिहान दिया ना, तब तो बीए देना मेरे लिए मेरी प्रेस्टीज पे था, क्योंकि मैं हमेशा से साइंस स्टूडेंट रही थी और मैं कहती थी मैंने हाँ, जहां डॉक्टर बनना था, जेनेटिक्स बनना था, तुम लोग मुझे पर्शियन मतलब पढ़ा के तो फारिग कराना चाह रहे हो। नॉट दैट आई हैड समथिंग अगेंस्ट पर्शियन, बट द पॉइंट इज आई वो, तो मैंने जबरदस्ती अपने ऑप्शनल में स्टेटिस्टिक लिया, जो कि मैंने नहीं पढ़ा हुआ था कभी। मैंने कहा मैं क्यों, मैं सस्ता एवी, मतलब इजी वे आउट क्यों ढूंढूं। मुझे जबरदस्ती जब पॉलिटिकल साइंस लेके दिया गया ना, तो उसमें मैं पूरे बीए में फेल हो गई। तो जब मैंने दोबारा लिया ना इलेक्टिव, तो मैंने एजुकेशन लिया। मैंने कहा वो पढ़ा ना बायो से मिलता जुलता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हम्म, थी कि सारी किताबें उर्दू, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की थी ना, वो सब उर्दू में थी। आप सोच हाँ, सकती हैं कि जो जार्गन्स वाला सब्जेक्ट हो, जिसमें लैंग्वेज ही बिल्कुल बदल जाए, वो उर्दू नहीं रहती, वो जार्गन्स होते हैं सारे। तो वहां पर मैंने उर्दू में एजुकेशन तैयार की, और अंग्रेजी में मैं ट्रांसलेट करती थी उसे, क्योंकि पेपर मैंने अंग्रेजी में, तो ये हाँ, पागलपन भी मैंने किया हुआ है। तो थिंक कि मैं ये वाली चीज मतलब मैं करती होती थी। तो आप क्या कह रही हैं? ये मुझे बिल्कुल इस चीज से बात अपना वो याद आ गया एक्सपीरियंस के, मैंने जिस वक्त उसमें किया, और मैं थर्ड ईयर के अंदर मैंने उसके ऊपर किया। मैंने भी इसी तरह ही आप वाले ही तरीके किए। मैं इधर इधर लाइन चेंज करके, और हिट एंड ट्रायल, ये कर लो वो कर लो, भाई ये कर रहा है तो ये कर लो। तो मैं जिस वक्त ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि कॉलेजेस के अंदर अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हो जिसको कि आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। मैंने जर्नलिज्म हम्म रखा था बाय द वे थर्ड ईयर के अंदर, और उसमें टीचर हम्म। जो है वो उर्दू में वो दे रही होती थी लेक्चर, और मैं उस वक्त उसको जब आप नोट कर रही ट्रांसलेट होती करें। थी, नोट करते करते तो मैं वो उसमें कर रही होती थी। बल्कि मेरी बहन, मेरा तो खैर जो बनना था, हम कुछ और ही हिट एंड ट्रायल करके बन गए, और वो उसको साइकोलॉजिस्ट बनना था शुरू से, और वो बनी भी। लेकिन जो स्ट्रगल और वो चीजें कि हर नोट्स चीजें सब कुछ उर्दू में है, और मुझे पता है कि एज फैमिली या उसमें, या खुद उसने इतना ज्यादा उसने उसमें स्ट्रगल की कि करते हुए उसको पहुंचने के लिए। तो ये चीजें हमारे यहाँ है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो मैं कहते हैं आपको ना, एक चीज आपने बताऊं खरा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो आप बात कर रहे हो ना, इसमें ये दुख की बात ये है कि हम अपनी जब प्रोफेशनल स्टडीज में भी आ जाते हैं ना, तब भी हमें सही करियर गाइडलाइंस नहीं होती। जब मैंने अपना मास्टर्स कर लिया तो मुझे समझ में आ गया था कि मीडिया इज माय फील्ड। तब जब मुझे शिवलिंग स्कॉलरशिप मिली है, तो चूंकि मेरा हेल्थ साइड पे बहुत इंटरेस्ट था, बिकॉज मैंने 18 साल की उम्र से अपने पेरेंट्स को सोचा असिस्ट किया हुआ था, और मेरा अपना शौक था हेल्थ का, मेरी मतलब जुनून था मुझे। क्योंकि एक टाइम पे मैं साइकोलॉजिस्ट भी बनना चाहती थी, लेकिन वो प्राइवेटली बन नहीं सकते थे, तो मुझे लगता था हाँ, वेरी वही थे ना साइकोलॉजिस्ट, वही आज मैं जो चीजें हरकतें कर रही हूँ, बिल्कुल, लिंक्स। हाँ,
तो आप सोचें कि जब मैंने मेरी शिवरिंग स्कॉलरशिप हुई ना, मुझे काफी लोगों ने जनरली कहा कि यार तुम मीडिया में ही फिल्म स्टडीज में फर्दर ऑन कुछ करो, जो कि उन्होंने सही गाइड किया, ठीक है। मगर चूंकि मुझे लगता था कि हर कोई मुझे धक्का किसी तरफ मार देता है, मैं कुछ स्पेशलाइज करूंगी, ये भी जुनून था मुझे, पागलपन, कि मैं कहती थी नहीं मैं कुछ हटके करूंगी। तो मुझे चूंकि हेल्थ में इंटरेस्ट था, तो मैंने अपनी वर्टिकल ग्रोथ नहीं की, मैंने हॉरिजॉन्टल की। लेकिन इसने मुझे जहां फायदा दिया वहां किसी आम बंदे को फायदा है ही नहीं। मैंने मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी चुना एज अ सेकंड मास्टर्स, विच इज सच अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। एक मेडिकल मतलब एक मीडिया स्टडीज के बंदे का मेडिकल, लेकिन ये जो कंबाइन करता है। तो आज जब मैं पब्लिक हेल्थ के साथ जब मैं वीडियो प्रोडक्शंस पे काम करती हूँ, तो मेरे पास जो नॉलेज है एंथ्रोपोलॉजिकल कंबाइनिंग विद द, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर पे काम कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं पर्टिकुलरली, उनका कंटेंट डिजाइनिंग does not only need सिर्फ प्रोडक्शन, needs the social, पूरी की पूरी सेटअप, the anthropological background of anything so that it can be depicted through the videos. So it's a very highly specialized thing. बल्कि अभी जो सुन रहे हैं, कोई अगर जो इसमें करना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा इसको बताओ कि ये जिस तरह आप ये जो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी जो आप कह रहे हो, ये क्या है इसके ऊपर, और ये इसके अंदर क्या क्या करवाया जाता है और किस तरीके से है ये, और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ कि इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीबडी। मैं अगर मुझे वापस अगर कभी कहा जाए ना कि तुम्हारे पास जिंदगी में दोबारा चांस है, तो मैं शायद वो दोबारा ना लूं, ठीक है। लेकिन उसकी रीजन क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी करने के लिए मास्टर्स में यू नीड टू हैव अ बैकग्राउंड इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली सोशल साइंसेज की मदर है, ठीक है, इट्स मदर ऑफ सोशल साइंसेज। सो बेसिकली आप समझे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जितनी आपकी वेलबींग से लेके रिलेटेड जितने बिहेवियर्स है ना इन सोसाइटी, वो तमाम चीजें एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, इट्स नॉट मेडिकल, बेसिकली इट्स द वेलबींग इन अ सोशल सेटअप। तो एड्स आपके अगर कोई पेंडेमिक है, या आपकी जिसका एड्स है, या आपका हेपेटाइटिस है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, इसके साथ जो आपके सोशल जो स्टिग्मास या सोशल प्रेशर्स या सोशल बिहेवियर्स अटैच है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसके साथ जो पूरे सोशल आते हैं, ये तमाम वेलबींग के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें आपको मेडिसिन जाके नहीं पढ़ते हो, इसमें वेलबींग से रिलेटेड आप अपने सोशल बिहेवियर्स को स्टडी करते हो कि लेट्स से अगर एड्स हो रहा है खास जगह पे, तो वो क्यों हो रहा है, उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा तो उसके लीगल और सोशल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, और तमाम चीजें, और फिर इंडिविजुअल का क्या, तो मतलब इस किस्म की चीजें होती हैं उसमें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बहुत कुछ है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें जो जार्गन्स है ना, जो जार्गन्स है वो बहुत एंथ्रोपोलॉजिकल है। सो सबसे बड़ा जो आपको, मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ वो ये था, क्योंकि मेरा जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड था, तो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन इन राइटिंग द कंटेंट, वो हमेशा मेरी जो हेड थी वो इंडियन थी, वो मुझे कहती थी कि तुम्हारा ना अप्रोच बड़ी जर्नलिस्टिक है, मेक इट एंथ्रोपोलॉजिकल। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट आई फेस्ड। सो एंथ्रोपोलॉजी जिसकी लेनी है, दे नीड टू हैव अ बैकग्राउंड इन एंथ्रोपोलॉजी एज वेल, हाँ, एंड स्पेशली मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त आपने किया कि वो जो एक बचपन में एक चीज थी कि डॉक्टर बनना है या मैंने वही चीज करना है ना, तो उसके अंदर वो कहीं वो चीज जाके थोड़ी सी सेटिस्फाई हुई वो चीज के, अच्छा मैं ये मैंने करना। उससे पहले सेटिस्फाई हुई कि जब मैं जियो में गई, तो पहला जो मुझे शो मिला वो हेल्थ शो मिला, और जिस तरह से हेल्थ शो मैंने चलाया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मीडिया में किसी ने नहीं चलाया, आज तक। आज भी जो लोग जाने तो जहान को जानते हैं, जाने तो जहान में जो टॉपिक्स कवर हुए हैं और जिस एक्सटेंट के साथ कवर हुए हैं, इट वाज अ स्टैंड अलोन हेल्थ शो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के साथ 4 साल आई डिड इट, एंड आई डिड लाइक मोर देन हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स as producer and as assistant producer, पहले associate producer and then producer। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेडिकल सेक्टर में भी सब लोग जानते थे। मैं यकीन करें, I was one of those journalists, जब अस्पताल में घुसता था ना, तो मेरे कैमरे को भी कोई डॉक्टर कुछ नहीं कहता था कि सबीन आई है, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम द फैमिली, मेरा फैमिली बैकग्राउंड हेल्थ डॉक्टर्स का था, तो आई न्यू द एथिक्स, ठीक है, कि एक जर्नलिस्ट जब घुसता है कहीं पे जाके और जिस तरह शोर मचाता है, मुझे ऑपरेशन थिएटर तक वो बगैर किसी भी प्रॉब्लम के ले जाते थे। मैंने अपने हाथों से सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी शूट की हुई है, डायलिसिस शूट किए हुए, हर दुनिया की चीज मैंने शूट की हुई है अपने हाथों से, अंदर इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर। मुझे कभी किसी ने नहीं रोका, बिकॉज मेरे पास जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड भी था, मेडिकल का भी था, एथिकल भी थी मुझ पे एक सेंस के, यार एक जर्नलिस्ट के जब आप किसी की प्रीमिस में घुसते हैं तो किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं। और जब मैं केस स्टडी लेती थी लोगों से,
पेशेंट हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये समझता है कि मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि मुझे मेरी ट्रेनिंग थी अम्मी अबू की तरफ से टू टेक द केस स्टडीज। तो मुझे मजा आ गया था, शायद इसी जुनून की खातिर मैंने जो है ना मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी किया, बिकॉज ये नशा लग गया था मुझे। अब अगर ये देखो ना कि ये सारा आपका एक अल्लाह की तरफ से एक पाथ बन रहा था, जिसमें रास्ते में से आप गुजरते गुजरते वो चीजें आप उसके ऊपर उठाई जा रही थी ना, कहीं से कोई स्किल उठाई है, नॉलेज उठाया, कहीं से कुछ उठाया, और वो अल्लाह ताला आपका रास्ता बना रहा है। और ये बिल्कुल इस बड़ा कहती हूँ कमाल, क्योंकि मैं यही तो कहती हूँ यार, मैं ये नहीं समझती मैं कोई बहुत कामयाब इंसान हूँ, पर अल्लाह ने मुझे जिस जिस चीज सिखाई है ना मुझे, वो मेरे लिए कभी भी जाया नहीं हुई, कभी भी जाया। इतनी सी चीज थी, मैं तो अपने कहती हूँ अपने स्टूडेंट से मैं इतना सीखती हूँ। क्यों? जब मैं पढ़ाने के प्रोसेस में गुजरती हूँ, ये हर टीचर इसे एक्नॉलेज करेगा जो जान लगा के पढ़ाता है, कि जब मैं पढ़ाने के प्रोसेस से गुजरती हूँ तो मैं इन दैट प्रोसेस आई लर्न सो मच। और मैं हमेशा दिल से स्टूडेंट का मुझे थैंक यू होता है कि यार ये जो, क्योंकि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आई लर्न अ लॉट, और वो कभी रुकता नहीं है सिलसिला, आप जो मर्जी कर लो जिंदगी में। बिल्कुल। और ये देखो, ये जो आप बात कर रही हो ना कि आप इंसान अगर सीखना चाहे ना, और अगर उस इतना इगोइस्टिक ना हो, तो आप अपने इर्द गिर्द के हर इंसान से, आप हर चीज से, अपने इवेंट्स के किसी भी इवेंट से, लाइफ इवेंट से, किसी चीज से आप ट्रैवल करते हो, तरह तरह के आप लोगों से मिलते हो। इवन आपके घर के अंदर कोई आपके कोई हेल्पर आ रहा है, कोई चीज, आप किसी से भी आप सीख सकते हो, प्रोवाइडेड आप सीखना चाहो तो। ठीक है ना? आपको पता है मेरा फेवरेट टीचर और बेस्ट टीचर कौन है? कौन? अजान। अजान? my 10-year-old reason देखो ना, taught me कि इंसान की परवरिश के अंदर जो हर्डल्स आते हैं, he taught me all those things। हाँ, जो मेरी जिंदगी में वैक्यूम्स थे, खुशियां थी, गम थे, परेशानियां थी, मैंने उस the day he was born, नहीं, the day he was I conceived him, उस दिन से मैंने जो सीखा है ना, in terms of parenting, in terms of sabr, in terms of brought up, in terms of human psychology, in anything you say, through him। और ये जो मेरे में, अच्छा, एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम रुक जाते हैं ना एक जगह के, बस मैंने सीख लिया, नो, ये प्रोसेस रुकने नहीं देना। स्टेगनेंट पानी में से बदबू आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। हमें मतलब दम तक नहीं रुकने देना, कभी मत मानो कि मुझे सब आता है। हाँ, और लाइफ तो देखो, लाइफ तो चेंज का नाम है ना, एवरी मोमेंट इट्स चेंजिंग। हम हर लम्हा आगे से आगे हम जा रहे हैं, उसके ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ कि जो इतना कुछ ये कर रही हो, ये क्या है? थोड़ा सा अगर आप अपना उसका मैं चाहूंगी कि क्योंकि आप शैवनिंग स्कॉलरशिप आपको मिला और उसके ऊपर है, अगर थोड़ा सा उसके ऊपर बताओ, और अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा यूके का बताओ कि किस तरह से है, क्योंकि ज़ाहिर बच्चे सुन रहे हैं, उसके ऊपर है, तो दे वुड लाइक टू नो अबाउट इट। यार बात मैं सिर्फ इतनी चीज से शुरू करूंगी कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कहती थी कौन लोग जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब ऑनेस्टली मुझे एलियन नहीं लगते थे। और तो मुझे भी किसी ने बोला था कि ये शेवनिंग स्कॉलरशिप, मुझे ये भी नहीं पता था शेवनिंग स्कॉलरशिप है क्या। तो मुझे मैंने कहा अच्छा, दैट टाइम आई वाज इन जियो, सो मुझे किसी ने कहा यार अप्लाई कर दो। तो हालांकि इतनी बिजी रूटीन थी, पता नहीं मुझे क्या सोची, मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई क्या करना था, बकायदा पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे। तो जब मैंने अप्लाई किया, जिस प्रोसेस होता चला गया, अम्मी की डेथ भी उसी दौरान हुई। अल्लाह ने मेरे लिए सिर्फ दरवाजे वो खोलने थे, तो वो चीजें होती चली गई और मैं शेवनिंग स्कॉलरशिप विन कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत थोड़े से लोगों में, आई थिंक पूरे पाकिस्तान से शायद 7 लोग थे, हाँ, और पूरे दुनिया, उस दुनिया से शायद 27 लोग थे। तो अच्छा, अब ये प्रोसेस क्या था बेसिकली? देखिए, शेवनिंग स्कॉलरशिप जो है ना, वो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है अगर बच्चे उसे अवेल करना चाहते हैं। देखिए, मगर वो है मास्टर्स के लिए, ठीक है। ये ब्रिटिश शेवनिंग स्कॉलरशिप ब्रिटिश है। और दूसरा, ये सबसे अमेजिंग बात कि आपके डे 1 से लेके डे एंड तक सारा खर्चा ही आपका उठाते हैं, आपके रहने का, आपके ट्रेवलिंग का। आपने जाकर वहां अगर लैपटॉप खरीदा, मतलब इनिशियल एक्सपेंस जो आपका होता है वो भी आपको करके देते हैं। आपकी जो मंथली स्टाइपेंड है वो भी मुनासिब होती है कि आपको अपने पास से खर्चना नहीं पड़ता। आपकी जो एजुकेशन फी है वो फुली फंडेड है, यानी कि मैंने अपना, अगर कुछ वहां अपना जाती खर्चा है तो वो शायद अपने शौक में खर्चा होगा, जो कि मैंने वहां कमा के ही खर्च दिया। मतलब कि मैंने वहां पे जो और जॉब्स की, ये बड़ी खूबसूरत मेरे जिंदगी में और चीज है कि मैं जब वहां गई थी, आई वॉज अ प्रोड्यूसर एट दैट टाइम, चस वाली जिंदगी थी, ठीक है। बट वहां जाके जब मैंने और जॉब की, आई कैन नॉट फॉरगेट इट, ब्यूटीफुल टाइम, बहुत मजेदार। और धुलाइयां भी की, सारी चीजें की, रिप्लेनिशमेंट का काम भी किया।
तो बहुत मजेदार टाइम था वो। तो जो स्टूडेंट तो हाँ, तो स्कॉलरशिप, ये पहली बात तो बहुत अमेजिंग है। इसको जो अवेल करना चाहता है, फुली फंडेड है और बहुत प्रेस्टिजियस है। कोई सुन ले, अगर किसी को पता है कि शिवलिंग स्कॉलरशिप क्या है, तो बहुत जबरदस्त, मतलब रेटिंग में भी सबसे ज्यादा है। दूसरी बात ये कि शिवनिंग के साथ साथ एक और आती है कॉमनवेल्थ की, वो भी बहुत जबरदस्त है, वो भी फुली फंडेड है। अच्छा, शिवनिंग के फेलोशिप प्रोग्राम्स भी आते हैं, शिवनिंग के फेलोशिप प्रोग्राम्स भी आते हैं, सो वो भी जरूर ट्राई करें। ये यूजुअली अक्टूबर के टाइम में तकरीबन ये आती होती है, अक्टूबर में, हाँ मेरा ख्याल है अक्टूबर में ही है, या अगस्त सितंबर अक्टूबर में आती होती है, लॉन्च होता है इसका। और फिर आपने उस पूरे प्रोसेस से गुजर के इसके 2 3 4 स्टेप्स हैं, आईएल्स भी देना है, फिर शिवनिंग के आपने हाँ आपने सारे उसके कागजात भर के, तमाम पर्सनल स्टेटमेंट, ये वो भी पूरा प्रोसेस है। अगर किसी को उस पर गाइडेंस चाहिए, दे कैन गेट इन टच। अब तो खैर चीजें बहुत बदल गई, और सबसे बड़ी बात अब ऑनलाइन चला गया है, ठीक है, आपको अब तो वीडियोस मिल जाती है, ठीक है, यू जस्ट गो सर्च कि आपने अप्लाई कैसे करना है, फिर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। और यकीन करें, इट वाज टोटली अनगाइडेड, मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में किस तरह से जाया जाता है। ये इसके बस ऊपर अल्लाह हम का करम था कि बिल्कुल चीजें इसके निकलती हैं। ऊपर हम एक करेंगे, बल्कि वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसको कॉमनवेल्थ वाला, उसको स्कॉलरशिप हाँ उसको हुआ था। वो तकरीबन 3 होते हैं जो कि अक्रॉस पाकिस्तान या उसके ऊपर वो जो मिलता है जिन लोगों को ये क्या है। इसके ऊपर हम बिल्कुल करेंगे कि मैं चाहूंगी कि आप, हाँ, कि ताकि ये कि डिटेल के अंदर जो अप्लाई करना चाहते हो, जाहिर जिस तरह आप अभी बता रही हो कि कोई गाइडेंस नहीं थी या क्या है, तो मैं चाहूंगी कि हम इसके और ऊपर तो एक अलग सीक्वेंस नहीं से, पता होती है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली, अनकंडीशनल ऑफर आती है, सारी चीजें वो सब पता ही नहीं होता बिल्कुल कि अच्छा, क्योंकि आईएलटीएस बीच में बिल्कुल। लटका हुआ होता है, अच्छा सेशन कब शुरू होना है, ये सब नहीं पता होता, तो कंफ्यूजन रहती है बहुत। तो हाँ, ये इसमें बिल्कुल कर लेंगे। मुझे अब ये बताओ कि इतना सारा कुछ करती हो, तो ये है कि हाउ डू यू हैंडल मल्टीपल जो प्रायोरिटीज हैं ये लाइफ के अंदर, ये किस तरह करती हो ये? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया, मेरे मियाँ मेरे इर्द गिर्द ही बैठे हैं और उन्होंने कहना मैं मेरे दसना। साथ मेरे साथ मुश्किल सवाल मैंने निकाल के रखे हुए, मैंने कहा जरा नहीं, सबीर मैं के। आपको बताऊं कि मेरी अभी ये चीजों के साथ साथ मैं अपने घर को खुद देखती हूँ। मेरे पास जो हाँ मेड है वो सिर्फ आती है, सफाई करती है और वो फिर चली जाती है, सफाई करती है, कपड़े इस्त्री करती है और चली जाती है। खाना मैं खुद बनाती हूँ, घर के मामला बाकी मैं खुद देखती हूँ। उसके आगे पीछे भी मेहमानदारी हो जाए तो कुकिंग मैं ही करती हूँ। खाना हमारे घर में बाहर से नहीं कोई आने आता पकाने, खाना मैं ही पकाती हूँ। और इस हाँ तरह बाकी चीजें जाहिर है। हाँ, अजान को मैंने खुद तैयार किया कि वो अपनी पढ़ाई खुद किया करे, इसलिए मैं उसके सर पे नहीं बैठती। क्लास 3 तक मैंने उसे तैयार किया। अब मैंने उसके बाद मैंने पैरेलल ट्रांजिशन लेके, तो वो मेरे सर पे एक बड़ा बहुत बड़ा वो है, वरना माए जाहिर है बच्चों के साथ ही पूरे पूरे दिन निकल जाते हैं। मेरा एक प्रॉब्लम है बहुत शदीद, और वो है जिसको मैं सबसे ज्यादा उससे फाइट करती हूँ, वो मेरी है कंसिस्टेंसी। मैं जितना मैं मल्टीटास्कर हूँ, एंड आई यूज्ड टू बी अ बेटर मल्टीटास्कर पहले, क्योंकि अब उम्र के साथ भी और कोविड के बाद भी दिमाग जो है ना स्पीड पे चलता नहीं है। ऑनेस्टली दो दफा तो खत्म ही हुआ है कोविड, मुझे तीसरी दफा भी शायद हुआ है, क्योंकि हेल्थ बहुत खराब हुई है। मैं बता दूं आपको, जब मेरी पूरी स्ट्रगल का फेस था ना, इसमें जो सबसे ज्यादा चीज कॉम्प्रोमाइज हुई वो मेरी हेल्थ हुई। तो उस हेल्थ की वजह से ना जो मेरा और फिर कोविड पिछले 2 3 सालों में मैंने देखा है कि मैंने ना, मेरी रिटेंशन बहुत खराब हुई है। मैं कंसिस्टेंटली चीजों को नहीं कर पाती हूँ, डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ बिकॉज सो मेनी थिंग्स। और फिर इस स्ट्रगल में बहुत सी जो अपनी जिंदगी की स्ट्रगल भी थी ना, घर बनाना था, सेट होना था, सारी चीजें। तो फिर होता क्या है कि मैंने बहुत से इनिशिएटिव्स में, मैंने और मेरे हस्बैंड ने शुरू किया काम। यानी 2008 में हम सोशल मीडिया पे काम शुरू हो चुके थे। आप सोचे, तब इसका उस टाइम तो इतना हम भी था भी कोई नहीं। सीन ही हाँ नहीं था। लेकिन हाँ चूं रोजी रोटी की भाग थी कि यार नहीं, अब क्लाइंट का काम है, तो उस चक्कर में तो फिर क्या होता था, वो चीजें साइड पे रह जाती थी जो इनिशिएटिव्स होते थे, क्योंकि उसमें पैसे तो कहीं से नहीं आते थे। एनर्जी भी खुद लगानी है, वक्त भी अपना खुद लगाना है, पैसे भी अपने खुद लगाने हैं। तो होता क्या था कि वो चीजें साइड पे रह जाती थी और क्लाइंट प्राइम पे चला जाता था, और फिर पता ही नहीं चलता था, फिर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती थी। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है मल्टीटास्किंग। इसके लिए डिस्ट्रैक्शन होती है, मुझे कॉन्स्टेंटली अपने आप को ना जगाना पड़ता है, और मैं फिर भी कहीं जगह फेल हो जाती हूँ। मुझे ये लेकिन बताओ। एक दौड़ है, करनी पड़ती है, कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। प्रायोरिटाइज करती हूँ मैं अब थिंग्स टू, अपनी लिस्टें बहुत बनाती हूँ, अलार्म्स लगाती हूँ, हर वक्त मेरा अलार्म किलो को बज रहा होता है और मैं भूल ये जाती मेरे हूँ कि पहले किस अलार्म लगाया था।
जो ये प्रोफेशनल्स है ना, ये और खास तौर पे खवातीन, उनके साथ ये एक थोड़ा सा है, लेकिन खवातीन बेहतर होती है मल्टीटास्किंग में। मुझे ये बताओ कि जिस तरह हाँ, अभी मर्दों आप से नहीं होती। यू आर वर्किंग विद योर हस्बैंड इन द प्रोडक्शन हाउस, हाँ आपका अपना है, उसके ऊपर जी कर जी रहे हो, जी। तो इसमें थोड़ा सा एडवांटेज होता है, क्योंकि ये थोड़ा नहीं, बहुत होता है। बहुत होता है ना। इसमें ये अगर फील्ड जिस तरह अगर आप ये कहते हो कि जो ये इसमें लेडीज के लिए या क्या है, ये खवातीन के लिए जिस हाँ। तरह है, ये क्या डिफिकल्टीज आपको लगती हैं कि ये किस तरह है? और एक तो ये, और दूसरा ये कि जब क्रिटिसिज्म होता है हम्म। आपका लाइफ में या उसमें आपके फील्ड में काम के, हाउ डू यू हैंडल इट? किस तरह देखिए बात करती सुने, हो? मैं आपको एक बड़ी सही बात बताऊं। पहली बात जो आपने बोला हस्बैंड के साथ उसका क्या फायदा है कि नहीं, मैं कहती हूँ कि जो आज के जमाने में कम से कम अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की फील्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, कोई हाँ, भी फील्ड है, इससे बड़ी गनीमत कोई नहीं है। और अगर वो सपोर्टिव है एक दूसरे के लिए, मैं आज जो कुछ भी हूं ना, इधर जो कुछ भी कर रही हूँ, इजाजतें मिली नहीं अगर मुझे, तो वो मेरे मियाँ की वजह से है। मैं इतनी हाँ, ब्लंटली आके इतने इतने ब्लंट वीलॉग कर जाती हूँ, ठीक है। चाहे वो ज्वाइंट फैमिली हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ऐसी बातें हो जो आम लोग लड़कियां नहीं करती, हाय मियाँ की जवाब देंगे, वो ही इज माशाल्लाह वेरी सपोर्टिव। बल्कि वो मुझे कहते रहते हैं कि तुम ये भी कर सकती हो, वो भी कर सकती हो। मैं कहती हूँ हाँ, सारे काम मुझे दे दो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो वो इतने माशाल्लाह सपोर्टिव है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं, और इसके साथ ये है कि जब क्रिटिसिज्म आता है ना कहीं से भी, अव्वल तो आता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मियाँ मियाँ सपोर्टिव होता है ना, औरत सुकून में होती है। एक तो जहनी सुकून में होती है, उसे पता है कि यार मैं इस प्रेशर में नहीं हूं कि अब। और दूसरी बात ये, जो हमारी फील्ड है, हमने एक टाइम तक लोकेशंस पे काम किया है। हमारा काम ऐसे बाइफोकेट हो गया, जो मुझे पता है कि बाहर की चीजें उन्होंने देखनी है, जो मैंने इनसाइड काम है वो मैंने देखना है। तो हमने ना ड्यूटीज डिफाइन कर ली है। हम दोनों ना कॉम्बो मील है दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कि एक दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और ये बेस्ट चीज होती है। किसी की एक स्ट्रेंथ होती है, किसी की एक स्ट्रेंथ होती है। यकीन कीजिए, मैं मल्टीमेटली नजर आती हूँ ना स्क्रीन पे, मुझसे 100 गुना ज्यादा है नाम। लेकिन सिर्फ फर्क ये कि मैं नजर ज्यादा आती हूँ, मुझसे बहुत बेहतर है हर चीज में। तो मैं बल्कि उन्हें कहती रहती हूँ मेरे साथ वीलॉग करो, कहते अभी नहीं। तो मैं वो मतलब इस तरह की मतलब बड़ी मजे की पार्टनरशिप है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि कि जब दोनों फंस जाते हैं तो फिर दोनों फंस जाते हैं, इन द सेंस फिर घर बच्चा इफेक्ट होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव थे। तो वो वाला जो टाइम था जिसमें अजान बहुत छोटा था, उसमें दे वर वेरी सपोर्टिव। हालांकि मैं उसको हर जगह शूट पे भी साथ लेके जाती थी, लेकिन ओकेजनली होता था जब कभी उसे छोड़ना पड़े। तो मुझे लगता है अगर मियाँ सपोर्टिव है ना, और मियाँ आपकी फील्ड का है, तो और तो बहुत आसान हो जाती है जिंदगी। फिर क्रिटिसिज्म भी इतना कोई नहीं आता जो परवाह करो आप किसी की। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने जाहिर है कि जिस फील्ड में आई हो उसमें एजुकेशन भी ली, सारा कुछ वो हम लिंक करते गए। आपको क्या लगता है कि सिंस यू आर वर्किंग एज अ डायरेक्टर कम्युनिकेशन, डायरेक्टर कम्युनिकेशन, लाइक टाइटल एक दे दिया आपने आपको, बट आई एम डूइंग लाइक अदर थिंग्स एज वेल। यस, डायरेक्टर कम्युनिकेशन। तो उसके लिए क्या आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम डिग्री या वही चीजें तो कहते हैं, लेकिन अगेन हम बात अच्छा, करते हैं कि उसके ऊपर स्किल्स के ऊपर कि किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए। एक तो ये होती है कि आप में ऑलरेडी है, कुछ इनबॉर्न होती हैं, कुछ में है। और ऐसी ही क्या है कि जो चीज जिस चीज को आप पॉलिश कर सकते हो, कि जिसमें कि आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। देखिए मैं आपको बड़ा बहुत ऑनेस्टली अगर बताऊं ना, कि अगर आपने अपना काम करना है ना, अपना काम, नौकरी नहीं करनी, अपना काम करना है, तो स्किल से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स आपकी जरूरी है, पहली चीज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, अब दिस इज कोई व्हाट आई क्यों, आस्किंग। हाँ, आपने, यार आपके पास काम है नहीं है, कोई कम पैसे दे रहा है, कोई आपके किए हुए काम के ऊपर उसने ऐसे बात की है कि आपका खून खौल गया है, कुछ भी। हाँ, आपने बड़ी मेहनत करके अपना क्रिएटिव एज दिया, अगला बंदा आपसे ऐसा ऐसी सब स्टैंडर्ड चीज पसंद कर रहा है, कह रहा है ऐसे बना के दो, तो आपको अपने ऊपर होने लग जाता है कि यार मैं मतलब ये एट द एंड ऑफ द डे मेरा पोर्टफोलियो भी है। तो आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स, और ये तमाम चीजें, ये सबसे पहले है। पेशेंस, दूसरी बात कि आपको ना क्लाइंट के साथ जितना आप जुड़ के रहते हो ना, उतने ज्यादा क्लाइंट आप पे रिलाई करता है, ट्रस्ट करता है, फिर वो जाता नहीं है कहीं आपसे छोड़ के आपको। तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल लर्निंग एंड अपग्रेडेशन इज सेकंड थिंग। स्किल आपके पास खुद हो, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो बहुत प्रैक्टिकल काम है। अगर इस इंडस्ट्री की बात आप करते हैं, और भी इंडस्ट्रीज में यही चीज है, बिकॉज अब ये बहुत सारा नॉर्मल हो गई है बात, कि इसके अंदर ना
अगर आप कहते हो ना कि अच्छा मैंने एक प्रोडक्शन कंपनी बना ली है और मेरा काम, मैं मार्केट से बंदा ले लूंगी, मेरे काम हो जाएगा, एडिटर भी ले लेंगे, डायरेक्टर भी ले लेंगे, ठीक है मिल जाता है, लेकिन जो पेन आप लेते हैं ना काम की, अगर आपको स्किल आती हो, वो दूसरा बंदा नहीं लेता, पहली बात। दूसरा, क्लाइंट को करना है आपने फेस, क्लाइंट से लिए फीड ब्रीफ आपने। जब आप क्लाइंट से ब्रीफ लेते हैं, आप क्लाइंट के साथ एक लिंक डेवलप करते हैं पूरी, वहां पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके साथ एक वन पेज पे होते हैं। जब आप वो काम हैंड ओवर कर देते हैं ना किसी तीसरे चौथे मल्ले के बंदे को, और आपको आता जाता कुछ नहीं है, आपको ये नहीं पता इसने एडिट में कैसे करना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, निटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को कैसे फाइनलाइज करना है, तो अगला बंदा आपके साथ जो जलालत घोलता है ना, वो माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि प्रोफेशनल स्किल होना बहुत जरूरी है लोगों में। मैं हमेशा जलील हुई हूँ कि जब भी मैंने किसी के हाथ काम दिया है ना, उसने वो पेन नहीं ली। मतलब मैंने 90% जो है ना मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा है, और उस प्रोसेस में मैंने अपने आप को मुसलसल अपग्रेड किया, मैंने और इनाम ने दोनों ने। स्क्रिप्ट हम खुद लिखते हैं अनलेस वी नीड समबडी, लेकिन उसको भी इवेंचुअली हम ही ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है। एडिट हम खुद देखते हैं, अगर हम एडिट करवा भी किसी से रहे हैं ना, तो हम सर पे बैठे होते हैं कि यार ये चीज आगे नहीं लेट किया, अगर हम लेट करें भी काम आगे वेंडर को, तो सर पे हम खुद होते हैं। इस तरह जो है ना, कि अगर अपना काम चलाना है तो स्किल पहले खुद लर्न करो और उसको समझो, देकर काम नहीं हो जाते हैं, काम फिर वैसे ही होते हैं। बिल्कुल यही बात मैं आपसे ये जो सुनना चाह रही थी ना, और मैं ये कि देखो, जब चीज आपको एक चीज आती है ना, तभी आप उस चीज को मॉनिटर भी कर सकते हो। ऐसे ही आपको पता होगा यार, अगला कह रहा है सर ये नहीं हो सकता, आपको मैं बताती हूँ जैसे होगा, और आपसे को दो नंबर ही नहीं करता, आपको कोई नहीं कहता नहीं हो सकता, आप 10 तरीके बताते हो, यूं होता है। और बल्कि ये जो एक हम सुना करते थे ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो कभी ये कहते थे कि नहीं जी कि इसमें करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिंदगी में मैंने भी ये जो हिट एंड ट्रायल से और बहुत सारी ऐसी चीजें, ये सीख ले, ये सीख ले, ये सीख ले, उससे आपको ना जिंदगी में आपको फायदा होता है। आपको कहीं ना कहीं आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हो, आपको अगर इधर से नहीं तो इधर से आप पकड़ लेते हो उस चीज को, आपको काम, आपको जिंदगी आसान हो जाती है। देखिए फरा, बात पता है क्या है, मैं ये नहीं कहती मैं मेरे जैसा कोई है नहीं, मास्टर कोई नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि कहीं मेरा काम फंस जाता है ना, तो मैंने तरले मिनटे नहीं किसी की करनी, मैंने किसी तरह उसे खुद निकाल लेना है। मैं मास्टर शायद किसी के भी ना हूं, लेकिन मुझे स्किल आती है, और मैं उसको सीखना भी, क्योंकि स्किल है वो तो हर दिन अपग्रेड हो रही है। आज एक चीज है, कल सॉफ्टवेयर बदल जाते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं, आपको नए नए तरीके सीखने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अटक गए ना किसी पॉइंट पे कि यार अब ये मैं रिलाई कर रहा हूँ किसी पे, तो लोग आप, और माशाल्लाह लोग इतना खराब करते हैं आपको कि पता नहीं लोगों में क्यों वो चीज खत्म हो गई है। मैं कहती हूँ प्लीज अपनी उस को जगाए, मदद करने से किसी के ना आपका कुछ नहीं घट जाता, अल्लाह आपके लिए मदद लेकर आता है। काम करना नहीं चाहते कि उसके ऊपर एक कोई चीज भी नहीं काम करते। हाँ, काम करना नहीं चाहते। फ्री में आप पैसे ले रहे हो ना, आप एटलीस्ट, तो ये जो सॉफ्ट स्किल मैंने बोली है ना, ये सॉफ्ट स्किल सबसे ऊपर है कि यार आप काम को अपना तो समझो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, लीडरशिप, कमिटमेंट, ये चीजों पे करो काम, फिर आगे है स्किल जितनी मर्जी आपको आती है, अगर आप में ये नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग। देखो ये लाइफ स्किल्स है ना, और ये आती कैसे हैं, ये अगर हम बच्चों को, या आप इसमें करते हो, जिस तरह आप ये अजान के ऊपर अगर आप काम कर रही हो, या इस तरह है, ये जब आप डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट सिनेरियोज में डालते हो और आप उनके साथ साथ रहते हो, तभी बच्चा लर्न करता है ना। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ कि आप भी ये जो आपको लगता है कि जो चीज अपनी खोज में थी, जो करना चाह रही थी, वो कुछ हद तक ढूंढ लिया है उस चीज को? दरवाजे पे खड़ी हूँ, दरवाजे तक आ गई हूँ, दरवाजे तक आ गई हूँ, आगे भी पर्दे हैं काफी सारे, निकल जाऊंगी इंशाल्लाह। मैं देखिए, मुझे ना, मैंने यही कहा ना, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है कि उस जैसा होना है, ऑनेस्टली मुझे अपने से, मुझे कुछ पिछले दिन से कुछ बेहतर करना है। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो हाँ, दरवाजे तक पहुंच गई हूँ, और बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ, अभी आगे है सभी। शायद जिंदगी में यही अप्रोच बेहतर है, इसलिए क्योंकि देखो सबसे जरूरी चीज जो मैं समझती हूँ कि कंटेंटमेंट जो है ना, वो चीज बहुत ज्यादा आपका पीस ऑफ माइंड, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जिसमें आपको जिंदगी में जरूरी, और वो तभी आता है जब आप, यू आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनीबडी एल्स।
आप अपने आप से साथ कंपटीशन में हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। आप इंस्पिरेशन लो लोगों से, लेकिन ये मत हाँ, समझो कि किसी के आप बस किसी को फॉलो कर करके आप जल्दी जा रहे हो यार, ये नहीं तो वो नहीं। मैं हाँ, आपको बताऊं, मैं बिल्कुल। जिंदगी में सबसे तो खुश किस दिन हुई थी, मुझे लगा था कि यार मुझे मेरा रास्ता मिल गया, जिस दिन मैंने अपना हाँ, पहला वीलॉग किया था। और वो पता है जबरदस्त। किसके ऊपर था? सेल्फ रियलाइजेशन पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। टॉपिक भी हाँ, ऐसा ही था। और हाँ, मैं उस दिन मैंने इनाम को पहली दफा कहा, मैंने कहा यार मुझे लगता है मुझे यही करना चाहिए था, नॉट दैट उससे पैसे कमा रही हूँ। हाँ। जो शुरू में आपने बात की थी ना कि दैट यू आर अ पीपल्स पर्सन, और दूसरा हाँ, एक और भी चीज आपको था कि डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके अंदर क्या एक जो सॉफ्ट स्किल की बात कर रही हो या उसकी उसमें है एम्पैथी। एम्पैथी। ठीक है। जो वो जो चीजें है ना, वो चीजें हाँ, थी जो कि आप उसके ऊपर वो करना चाहते। अच्छा, मुझे एक और बताओ जी, कम अब इसको वाइंड अप की तरफ हम आते हैं। एक जी। एक जो लास्ट क्वेश्चन की एक जो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, ये कि अगर आप ऐसा कोई एक ऐसी चीज जो कि आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज करना चाहो, तो वो क्या होगी? मेरे ख्याल है मैंने बगैर सोचे बोल रही हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी वो जो मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हुई है ना बहुत ज्यादा, हाँ, हाँ, काश मैं उसे हाँ, रिवर्ट कर सकती। मेरी हेल्थ हाँ, बहुत बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हुई, हाँ, मतलब मैं बयान ही नहीं कर सकती, मतलब मैं वो, लेकिन वो स्ट्रगल का हिस्सा थी। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, अल्लाह मालिक है। अल्लाह, अब मैं कहती हूँ अल्लाह बस साबित कदम रखे और चलता फिरता रखे, किसी को मोहताजी ना दे। इंशाल्लाह। लेकिन मेरी हेल्थ बहुत बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हुई, और हेल्थ की वजह से ही मेरी कंसिस्टेंसी, मेरा सस्टेन करना चीजों को, मल्टीटास्क उस तरह से ना कर पाना जैसे पहले कर पाती थी, प्रेशर उतना ना ले पाना, ये चीजें इफेक्ट हुई हैं। बट नाउ आई एम 40+, तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन मतलब लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे में जितनी एनर्जी है ना, मुझे कंट्रोल अपने आप को करना पड़ता है। तो मुझ लेकिन जब वो नहीं निकलती ना कहीं पे, तो मैं नीम पागल हुई होती, फिर मुझसे कुछ भी नहीं होता। फिर मैं ना, मेरे जो स्टेगनेंट डेज होते हैं ना, वो मुझे उठाना अपने आप को मुश्किल हो जाता है, कि बहुत ये मुझे मुझे रोज अपने आप से लड़ना पड़ता है समटाइम्स। आता है, ये अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ के अंदर, ये चीजें आती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शायद वो टाइम होता है व्हेन यू नीड टू स्लो डाउन योर सेल्फ। कि अगर आपका एक बम्पी रोड्स हैं, ये क्या है कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन करके उसके ऊपर है, लेकिन जाहिर है कि हेल्थ इज द मेन थिंग, कि अगर वो है तो सारा कुछ उसके ऊपर लेकिन आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ भी होती है जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जिनके अंदर इतना हाँ, कुछ होता है और उसके साथ वो करना चाह रहे होते हैं आप थोड़े रोक लगा टाइम देंगे में। ना, तो मैं, जी मेरा दिमाग जो है ना, मेरा हाँ, अजीब हो जाएगा। और शायद मेरे पे फेज आए कि मैं जो हूँ, मैं कुछ भी ना कर रही हूँ और मेरा दिल ही ना करे कुछ करने को, और फिर वो तो काफी कभी अरसा वो भी टाइम करना रहे तो चाहिए, मैं। कभी वो भी करना चाहिए, हाँ, नहीं? कभी वो भी करना चाहिए कि रिलैक्स करके हाँ, आप लेकिन लाइफ को हाँ, फील अगर वो करें। डिप्रेशन के साथ ठीक है। डेवलप ना हो रहा हो, हाँ, हाँ, क्योंकि डिप्रेशन से निकलना एक मुश्किल चीज होती है, और अगर साथ में फिर अपने आप को उतना एनर्जाइज करना, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे ट्रिगर, जो मुझे अब मैंने ना अपने ट्रिगर को, ये वीलॉग से मुझे फायदा हुआ है ना, वो ये हुआ कि मैंने अपने आप को समझना शुरू कर दिया ज्यादा। हाँ, हाँ। तो और मैंने आपकी अपने वजह ट्रिगर को से मेरा आइडेंटिफाई ख्याल है, करना शुरू कर दिया। हाँ, अब आपके इस करने की वजह से मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हेल्प है कि जो अपने आप को समझना या वो एक चीजें, मेरा ख्याल है कि आपके आज ये जो हम सारी कॉन्वर्सेशन है, इससे आई एम श्योर के लोगों को बहुत ज्यादा एक हेल्प मिली हुई होगी, एक बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन मिली होगी कि आपकी एक जर्नी, कि आपका किस तरह ट्विस्ट एंड टर्न्स, किस तरह लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स, किस तरह जो हम एक हमने एक चीज बनाई होती है ना कि जो लाइफ में अगर कुछ कर रहे हैं क्या बिल्कुल एक स्मूथ लाइफ जा रही है और हमारी ही लाइफ में प्रॉब्लम है, ये क्या है। और दूसरा, लोग हेजिटेंट होते हैं, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट देयर फेलियर, वो डरते हैं फेलियर के ऊपर बात करने से। तो मेरा अच्छा, आपका ये जो बात आपने ये जो की है, जिस तरह की है, एटलीस्ट मेरे लिए खुद एक बहुत ज्यादा एक इंस्पिरेशन है कि अच्छा, एक जिंदगी में इस तरह से भी होता है कि अगर जिंदगी में कोई आपने हार नहीं माननी, जो मैं हमेशा अपने यार स्टूडेंट से इर्द गिर्द कहती हूँ, यार नेवर गिव अप, उठो, लड़ो, एक मैं बार आपको वेट बताऊं, कुछ अपने नहीं स्टूडेंट्स होता। को क्या बोलती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जिंदगी में किसी पॉइंट पे तुम लोगों को लगे ना कि कोई नहीं है तुम लोगों को समझने सुनने वाला, तुमने बगैर सोचे मेरी तरफ रुख कर ली। मगर बिल्कुल, प्लीज तुम बर्दाश्त नहीं होना, प्लीज तुम लोग ज्यादती करोगे अपने साथ। और मैं आपको एक बिल्कुल। बात बताऊं, 2010 में जब मैं जॉब के ऊपर थी इधर जियो में, तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही थी और मुझे पता नहीं था, मेरी ट्यूबल प्रेगनेंसी थी, एंड माय ट्यूबल प्रेगनेंसी वो रप्चर्ड एट वर्क, ओह, at ओह, work. I was unable to conceive for like quite a time, क्योंकि मैं I lost it. I lost my child, I lost my tube.
इट वाज वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट, मैंने वही कहा ना, मैंने हेल्थ के ऐसे ऐसे बम्प्स को ऐसे, और व्हाइल आई वाज डूइंग अ डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, और मैंने नहीं सोचा कि यार नहीं मुझे तो मैं बैठ जाऊं और बस मुझे सब खिदमतें करें, वो अपना आप लेके मुझे, मेरा मियाँ ही मुझे उठा के लेके गया। हम दो ही थे जो डॉक्टरों के भी फिर रहे हैं, अपने लिए सॉल्यूशंस भी निकाल रहे हैं। तो ये प्लीज जो मर्द है वो भी समझो, जो औरतें हैं वो भी समझे कि ये जो स्पाउस की सपोर्ट होती है ना, नॉट दैट कि आप औरत है तो आपको मर्द की सपोर्ट चाहिए, मर्द को भी आपकी सपोर्ट चाहिए होती है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि खाना बना दो, पैसे कमा के ला दो, पाँव दबा दो, पानी ला दो, नहीं। सपोर्ट जो आपको इमोशनल सपोर्ट और आपकी जो करियर में सपोर्ट होती है ना, और आपको उठाने की जो सपोर्ट होती है कि यार उठो, चलो कोई बात नहीं, मिलके करते हैं, यार ये जिंदगी बना देती है। जितनी मर्जी तकलीफ हो, आसान जिंदगी अभी भी नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, लेकिन अगर आप प्लीज वैल्यू योर स्पाउस, उसको एनर्जी दे वो, ताकि वो कुछ करे, आप दोनों मिलके करेंगे, वो आपके खानदान के लिए अच्छा है। Exactly. मुश्किल टाइम भी गुजारेंगे ना, वो आपके खानदान के लिए अच्छा है। और एटलीस्ट यू वैल्यू समथिंग, आपके बच्चे वैल्यू करेंगे कि यार ये स्ट्रगल हमने देखी है। सबीन, इस कॉन्वर्सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इतना मजा आया आपसे बात करके। आपको अभी थोड़ा सा हमने जानने की कोशिश की है। अभी इतनी डायमेंशंस है आपकी, इतना कुछ है, इतनी नॉलेज है, इतनी बातें हैं जो करने वाली है। इसको हम करते रहेंगे एंड वी लव यू लॉट। और इसके ऊपर है कि मेरे तो यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट के उसके ऊपर जब मैं करती हूँ ना कि किसी चीज को ये है, और अभी से नहीं, और कितने साल हो गए, मेरे ख्याल कोई 20 साल तो हो गए होंगे एक दूसरे को जानते हुए करते हुए। तो इसको हम और कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह आपसे हम जो कुछ आप कर रहे हो हम उसके बारे में भी डिटेल में जानना चाहेंगे कि किस तरह हैं आपके जो इतने एवेन्यूज हैं, किस तरह से हैं। और अगर इनाम भाई कभी उसके ऊपर राजी हो जाते हैं तो उनको भी बीच में लेके आएंगे कि करें और हमें बताएंगे। राजी कराना, मैं कब से कह रही हूँ कि ना प्लीज मेरे साथ वीलॉग कर लें, साथ बैठे मेरे पर, नहीं अभी किसी मूड में नहीं है वो करने को। चलो कोई बात नहीं, क्या करेंगे। ये है कि आप उनसे देखो इतना कुछ है, और जरूर हम वो भी करना चाहेंगे। और एक दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जो है अजान का जो आपने वो करना है उसको कंटिन्यू करें। और हम अजान को आ गया यहाँ पे, मैं अजान को ये 2 नंबर करता है, इसको मैंने खींच के ले आना है, अब इसके इम्तिहान होने खत्म। आप करके इसका शुरू करें। एक तो इसके साथ मैं ही करूंगी जिसके ऊपर मैं करना चाहूंगी, मैं इससे बात करना चाहूंगी क्योंकि मुझे इतना मजा आता है इसकी करते हुए, लिटरली वी मिस हिम कि अब इसके अगर ये आ नहीं रहे हैं तो मैं आपको बात बताऊं ये क्यों रुका, क्योंकि मुझे लगने लगा कि मैं इसको ना प्रेशराइज कर रही हूँ। मुझे लगने लगा इनाम को मिल गया यार इसने, हालांकि हम दोनों की इतनी ख्वाहिश है ना, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये माशाल्लाह कर सकता है। हेजिटेट फिर बच्चे की चेंज आ रही होती है ना पर्सनैलिटी में, तो लेकिन मैं तो ये अड़ी हुई हूँ उस चीज पे, इस पर शायद मैं इसको थोड़ा सा खींच के लाऊं वापस इस तरह। कुछ नहीं तो मैंने इसे कह दिया कि अगले हफ्ते से तो मेरे साथ व्लॉग मेरा 1 दिन का कर रहे हो। चलो हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं और हम इसके ऊपर हम देखना चाहते हैं इसको, और नेक्स्ट में आप देखें, आप बनाए। तो चलो इसके साथ ही इस नोट के ऊपर हम इसको एंड करते हैं और इंशाल्लाह बहुत मजा आया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके आने का, और सक्सेस इन योर लाइफ एंड अ वेरी हेल्दी लाइफ, और स्टे ब्लेस्ड, ठीक है, एंड स्टे ट्यून्ड। Okay. Thank you, and thank you everybody for joining in and all the messages. Thank you very much. Thank you. I love you all. Thank you. Thank you everyone.